Then go, if the patient is a non-cirrhotic or you have no any cause, then go for the CT abdomen. And sometimes in the last is the laparoscopy. So these are the diagnostic tests in case of the ascites. After this, you say this is because of the cirrhosis of liver. Then what we'll do in the cirrhosis of liver, and mention the class, severity of the cirrhosis, prognosis of cirrhosis. Then what we'll do? You will do CTP classification. And what is CTP classification? Child Turcotte Puck classification. उसमें you have the clinical and some laboratories. कौन सी लेबोरेटरी कराएंगे आप? सीरम अल्ब्यूमिन, सीरम बिलिरुबिन एंड PTINR. द क्लिनिकल क्या दिखना है? दो चीजें, ascites and hepatic encephalopathy. Suppose a patient with the ascites, mild ascites, it is labeled as a grade 1 या label as a 1. No ascites 0, moderate ascites 2, severe से 3. इस तरह करना है आपको. हेपेटिक इनकेफ है 1, नहीं है 0. अल्ब्यूमिन नॉर्मल है, 0 है, कम है तो 1 है. INR नॉर्मल है, 0 है, ज़्यादा है तो 1 है. तो इस हिसाब से आपको स्कोरिंग करनी है. टोटल स्कोर इज 9. If the patient score is 9, means this is a CTP class A. So CTP class A means the patient have the 85% chances he will survive for the 5 years. So तब पूछते ना, अटेंड पूछते थे मेरे क्या होगा, मेरी बीमारी का बताएं, क्या करूं मैं, कितनी में जिंदा रहूंगा, तो वो आप करेंगे CTP स्कोर से. तो CTP क्लास A, CTP क्लास B and CTP क्लास C. CTP class C is a 45 chances to survive for 1 year. So this is CTP class C is a bad news for the patient. And for CTP class C, we always recommend the liver transplantation. तो एक तो ये करना है आपको. तो इसलिए पेशेंट्स की LFTs करनी है, सीरम अल्ब्यूमिन करनी है, उसके बाद PTINR करना है पेशेंट का. And sometimes the patient is candidate for the liver cirrhosis, hepatic transplantation, we go for the MELD score, model for end stage liver disease. All calculators are available in the online. CTP class, just put your parameters, your scoring. MELD score, उसमें सीरम creatinine आप ऐड करनी है, आपको सीरम सोडियम ऐड करना है तो वो स्कोर आ जाएगा. If the MELD score is more than 18, it means the patients need the liver transplantation. So this is important because patient develop the cirrhosis of liver. Number 1. Number 2, suppose he is a treated case of the Hep C. There is no any viral load of Hep C. Only patient of the cirrhosis of liver. So what we'll do? We will do the CTP class. We will do the MELD score, and what we'll do next? Either number 1, the management of ascites and complications, and number 3 is a close observation of the patient. We will go for the every 3 months ultrasound abdomen and alpha fetoproteins. क्यों? Because this patient has a risk of the hepatocellular carcinoma because he is cirrhosis. इसलिए हेपेटोमा के लिए every 6 month, every 3 month आप इसकी अल्फा फेटोप्रोटीन एंड अल्ट्रासाउंड abdomen करेंगे. because the early hepatocellular carcinoma is treatable. वो treatable है, curable है. लेट उसके बाद अब हमारे पास treatable नहीं है. This is very important. So this patient having the ascites, and this ascites most probably patient with the because of cirrhosis liver, what we will do? We will do the CTP class, MELD score and treatment of the ascites. सबसे पहले आएगा what is the management steps of the management ascites. क्या करेंगे सबसे पहले step? First step बताया था मैंने आपको. Salt restriction. Water नहीं, only salt restriction. Water कब करेंगे? When sodium is below 1 to 3. सब सोडियम लो होगा वहाँ पे वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं, बाकी सिर्फ आपको साल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है. कितना साल्ट खाए वो?
और दूसरे एसआईटीज में तो नहीं करना ना। तकरीबन अगर जहाँ भी अगर सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है तो वहाँ पे करना है। एंड सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म अकर इन द हार्ट फेल्यूर, लिवर फेल्यूर और किडनीज। अब यहाँ पे आ जाएं तो साल्ट से कितना करेंगे सर? कितना खाते हैं साल्ट आप? 5 मिलीग्राम से ज़्यादा ही खाते हैं हम लोग, तो इसको हम करेंगे कि 5 मिलीग्राम से आधा कर लें, 2 to 3 ग्राम पर डे। और कैसे करें वो? ऐसे उसको बोलेंगे कि आप अगर रोटी खा रही हैं तो रोटी में साल्ट फ्री करें, नमक में आप जो सालन है उसमें चुटकी डाल दें आप। तो सबसे पहला स्टेप जो है, अगर पेशेंट को माइल्ड एसाइटिस है, सपोज शिफ्टिंग डलनेस इज पॉजिटिव, नो फ्लूइड थिल, it has the mild ascites, only SAAG restriction is sufficient. Then if the patient having the ascites moderate to severe, having the symptom, because this ascites causes the symptoms. Which symptom? It may pressure over the abdomen, cause the dyspnea. It may pressure over the diaphragm, it causes dyspnea. It may press over the abdomen, causes the bowel disturbance, constipation. So if you need the rapid fluid loss, वहाँ पे you will start the diuretic therapy. And which diuretic therapy? Spironolactone. The drug of choice is spironolactone, 100 mg per day. So you will start tablet spironolactone 100 mg per day. The function of the spironolactone will start after 3 to 4 days, because the function start after new protein formation. So after 3 to 4 days, how will assess कि पेशेंट को रिस्पॉन्स मिल रहा है नहीं मिल रहा? क्या करना है? क्या करना है सर? सबसे पहले वेट करना है, पेशेंट का वजन करना है, पहले करना है कितना वजन है, उसके बाद 4 दिन 5 दिन वजन दोबारा करना है। वजन कम से कम 0.8 से लेकर 1 kg पर डे लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर पेशेंट का 50 kg वजन था, अब सपोज 59 हो गया, इसका मकसद है पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। 49, हाँ, मकसद है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप कंटिन्यू करेंगे। आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या करेंगे? इसको डोज को डबल करना है, 200 mg। नहीं किया 300 mg, नहीं किया अप टू 400 mg, द मैक्सिमम डोज ऑफ द spironolactone। इफ द पेशेंट हैज द सीवियर सिम्पटम हैविंग द एडिमा, पीडियल एडिमा, तो वहां पे आपको ऐड करनी है फुरसमाइड। तो यहां पे क्या करना है? फुरसमाइड। क्या होता है कॉम्बिनेशन? 100 mg spironolactone एंड 40 mg फुरसमाइड। दिस इज द यूजुअल कॉम्बिनेशन। सपोज ये पेशेंट आ गया, यहाँ पे क्या करना है? spironolactone 100 mg एंड फुरसमाइड लेसिक्स 40 mg स्टार्ट करेंगे आप। उसके बाद डेली वेट करना है या एब्डोमिनल ग्रोथ करनी है, यहाँ तक वो हम नाप करनी है। 33 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए विद इन 24 आवर्स में। यहाँ वजन आपका 1 kg कम होना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो ठीक है, कंटिन्यू करें। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसको डबल करना है। क्या डबल होगा फिर? 200 spironolactone एंड 80 mg लेसिक्स। डबल कर दिया आपने। 2-4 दिन बाद देखा कि पेशेंट अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या करना है? उसको 100 mg और प्लस कर लें आप। तो 300 mg spironolactone और 40 mg ऐड करें आप, 120। अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो 400 हो गया आपका spironolactone और 160। अगर इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसको लेबल करना है रेजिस्टेंट ascites। तो डेफिनेशन क्या हुई रेजिस्टेंट ascites की? द पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम थेरेपी ऑफ डायरेटिक्स इंक्लूडिंग द spironolactone 400 mg एंड द furosemide 160 mg, पेशेंट लेबल एज अ रेजिस्टेंट ascites। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रेजिस्टेंट ascites। नंबर 1 इज द पुअर कंप्लायंस। आपने दवाई दी, पेशेंट ने फेंक दी। आपने दवाई दी, पेशेंट इंटेक साल्ट को वही ले रहा है, इंक्रीज साल्ट इंटेक, वो तो कम नहीं किया। SBP, हेपेटोनियल सिंड्रोम, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, these are the causes of the resistant ascites. So please remember the definition and the causes of the resistant ascites. एक होती है intractable ascites. Intractable means you start the diuretic therapy but patient develop the hypertension. You cannot maximize the patient because patient the hypertension. So this is intractable. Or patient develop some side effects of the diuretic therapy. Gynecomastia is the side effect of the spironolactone.
So this is very intractable ascites. So this is the definition of resistance and intractable ascites. So this is the second step. First step was the salt. Second step was diuretic therapy. Diuretic therapy depends on the single or combination. If the patient has no ascites, no symptom, only start the spironolactone. If the patient has the pedal edema and having the more severe ascites, start the furosemide in the Lasix or furosemide, and day by day increase the dose if the patient not responding. If the patient not responding to the maximum therapy, new label is a resistant ascites. So this is the definition of the resistant ascites. So this is the second step. So patient having the resistant ascites, the third step will be paracentesis, repeated paracentesis. So the paracentesis क्या कितनी करेंगे आप per day? It may be with help of albumin or without help of albumin. Suppose. So you can draw the fluid up to 4 liters per day without help of albumin. But if you have the albumin, because albumin needs the 1 gram per liter, 1 gram per liter. If you have the albumin, you can draw even 20 liters per day with help of albumin, because albumin will maintain the oncotic pressure. So you have the two options. Paracentesis, either you go for repeated paracentesis daily 4 liters per day till amount of ascites will be reduced, or you have the in a single sitting with the aid help of albumin you can remove all the fluid from the peritoneal cavity. But this is not the therapy of the disease, this is the symptomatic therapy. आपको इन्फॉर्म करना है पेशेंट को, दिस इज नॉट दिस इज सिम्टोमेटिक थेरेपी, बस डिजीज इज देयर. If the patient not responding after paracentesis, then you go for the means now patients need the special therapy. And what special therapy is? Liver transplantation. So before liver transplantation, having the ascites and you draw the daily fluid, patient not responding, then you go for the tips. Transjugular intrahepatic shunt डालते हैं आप. But those patients who are waiting for the transplantation, not all the patients. The shunt will bridge till the patient in the waiting area. You have the multiple investigations, 3-4 months are required. Till then you advise the tips. After tips you go for the transplantation. First step was saltation, second step was diuretic therapy, third step was repeated paracentesis, fourth step was tips, and 5 step was liver transplantation. आखिर में step treat the underlying condition. अगर cirrhosis तो cirrhosis को ठीक करना है आपको. सपोज cirrhosis का काज रिवर्सिबल, उसको ठीक करना है. बर्चियारी सिंड्रोम उसको ठीक करना है. हार्ट का काज उसको ठीक करना है. तो दिस इज द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द ascites. Any queries? No. सर मैंने एक लेडी से थी, उन्हें यानी उनकी लास्ट प्रेगनेंसी से जब से ascites थी, उनकी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन थी. तो वो किसी और वो डॉक्टर ने उन्हें ये कहा था कि ये कभी ठीक भी नहीं हो सकती, मतलब ये आपकी लाइफ है. रीजन क्या था? 13 years से ascites थी उनको आफ्टर सी सेक्शन प्रेगनेंसी. तो सर मैंने लिया था और उसके साथ ascitic fluid कभी भी खत्म नहीं हुआ, ज्यादा हो जाता था कम हो. रीजन देखना पड़ेगा ना. मैंने कहा ना साग करना पड़ेगा. साग पॉजिटिव था ना, तो ज़ाहिर है वो एक तो थेरेपी आपकी है ना सिम्टोमेटिक, वो डायरेक्ट थेरेपी है, पैरासिंथेसिस है, वो तो खत्म नहीं होगी ना, बिकॉज डिजीज देयर, तो ऊपर नीचे होती रहेगी ना. 13 years से डायबिटीज दे रही तो उसको डोज मैक्सिमाइज करेंगे जब तक ascites रिवर्सिबल हो जाए. काफ़ी पेशेंट डायबिटीज चलते रहते हैं, ठीक हो जाते हैं. हम क्या करते हैं, सिंगल डोज देते हैं ना, उसके आगे जाते नहीं हैं. या कभी कभी क्या होता है, इंट्रैक्टेबल ascites हो गया, आपने डोज बढ़ा लिया, पेशेंट रिस्पॉन्ड किया, हाइपरटेंशन हो गया, इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस हो गया, तो वहाँ पे आप रिपीटेड पैरासिंथेसिस कर सकती हैं आप. ठीक है. तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या बताया, साग बताया. साग 1.1 से या उससे ज़्यादा होगा. अगर साग ज़्यादा है तो पोर्टल हाइपरटेंशन, और पोर्टल हाइपरटेंशन के काजेस मैंने बता दिए. कॉमन काज इज द सिरोसिस ऑफ लिवर. उसके बाद रीज़न क्या हो सकते हैं सर, हेपेटिक कंजेशन. हेपेटिक कंजेशन की होती है, CPC हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, राइट हार्ट फेल्यूर, बर्चियारी सिंड्रोम, मीनियोक्रिस डिजीज.
पोस्ट हेपेटिक में पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। अगर आप आ जाएं नॉन पोर्टल काजेस, नॉन पोर्टल काजेस रीज़न क्या हो सकते हैं? वही आपकी किडनी फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर हो सकता है, हाइपोअल्बुमिनिया हो सकता है, या इन्फेक्शस खासकर पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट। पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट किस में होती है? नंबर 1 इज द ट्यूबरकुलोसिस, नंबर 2 इज पेंक्रियाटाइटिस, उसमें एसाइटिस होती है, नंबर 3 बेलियरी रप्चर, उसमें हो सकती है। उसके अलावा पेरिटोनियल कार्सिनोमेटल मैलिग्नेंसी, उसमें हो सकती है। और उसके बाद ब्लड रप्चर हो सकता है, उसकी वजह से हो सकती है। तो डिफरेंट काजेज ऑफ द ascites, बट कॉमन 80% इज द सोर्सेज अवेलेबल, वो कॉमन है हमारे पास। सेकंड जो कॉमन है हमारे पास है पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस है, सेकंड कॉमन वो है हमारे पास। एंड समटाइम्स यू मे फाइंड द साइमल्टेनियसली 2 डिजीज, मिक्स डिजीज हैविंग द पोर्टल हाइपरटेंशन प्लस ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस। जब वो रिस्पॉन्स न करे तो फिर शक होता है कि पेशेंट में हैज अंडरलाइंग अ मिक्स डिजीज। तो अगर मिक्स डिजीज हो तो हम क्या करेंगे? आप ADA कराते हैं, सीरम डीएमाइनोज कराते हैं। दिस इज हेल्पफुल टू डायग्नोस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ कभी साइटोलॉजी कराते हैं, मेरे में तो नहीं है। तो अगर रिस्पॉन्ड न करे पेशेंट्स यूजली, तो थिंक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस। दोज पेशेंट इन CTP class C, they will not less responding because they develop also the hepatorenal syndrome. HRS जब होगा, HRS में भी आपके रिस्पॉन्स नहीं करेगा। So think about what is the reason behind this. What is the cause? Are the underlying any other conditions? Most common is a poor compliance of drugs or intracranial ascites. Sometimes they take the more salt and didn't take the medications properly. And maximize the medications. See the response. Daily wait करें उसका, डिग्रेस देखिए आप रिस्पॉन्स कर रही नहीं कर रहा पेशेंट्स, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्डिंग एंड हैविंग द लेसर। बाकी पेशेंट हैव द cirrhosis and this cirrhosis ultimately in the future may develop in the complications. उसका हल अगर पेशेंट है यंगर एज है तो बेटर इज द लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है सर। सो हमने एसाइटिस पूरी कर ली, तो कंक्लूड कौन करेगा? क्या क्या डिस्कस किया सर हमने एसाइटिस में? सर सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने हिस्ट्री भी डिस्कस किया कि किस तरह हिस्ट्री होती है एसाइटिस में, आंसर किस तरह होता है, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव हमने वो डिस्कस किए। अंडरलाइंग जो कास्ट एटियोलॉजी वो कैसे हम हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, रिस्क फैक्टर पूछ सकते हैं हम। उसके बाद अगर अदर कॉम्प्लिकेशन वो हम पूछेंगे। अब ट्रीटमेंट आउटकम पेशेंट देखिए ना कितने डॉक्टर्स को विजिट किया है, सारा पूछेंगे आप। ये मेरी विजिट मल्टीपल डॉक्टर्स, तो उसका रीज़न पूछेंगे क्यों बार बार आप जा रहे, क्या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या रीज़न है, आप इस तरफ गई हैं उस तरफ गई हैं, रीज़न क्या था। उसके बाद फिर आप सारी फैमिली हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री वो है। उसके बाद एग्जामिनेशन में सारी चीज़ें बता दी कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल अपीयरेंस है एंड हेड टू एग्जामिनेशन फॉर द साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वो हमने डिस्कस किया। देन वो डिस्कस किया एसाइटिस के काजेज क्या हो सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी कराएंगे, बेस लाइन, उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस। बाकी डिजीज लिवर के हिसाब से आपको प्रोफाइल करा लिया, BC करा लिया, एल्ब्यूमिन करा ली, PTA करा ली, इलेक्ट्रोसिस करा ली, कैटेनिन करा ली, वो सारा कुछ करा लिया आपने। उसके बाद हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के हिसाब से फर्स्ट स्टेप वाज साल्ट रिस्ट्रिक्शन, सेकंड स्टेप वाज डायबिटिक थेरेपी, थर्ड वाज पैरासिंथेसिस, फोर्थ वाज टिप्स, उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन, उसके बाद अंडरलाइंग कंडीशन को ठीक करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एसाइटिस। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन? थैंक यू मच सर, अटेंडेंस लें आप।